carry guidance on the awareness program that is particularly of the cancer and the causes of junk food to the young children by Dr. Yasser Arafat. I will give an introduction later on. We will start this program with the Khirat by B. Muhammad Suhail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Dear students, now we have with us today an old student of our school. Particularly, I am very proud that my favorite old student, Dr. Yasser Arafat. I think I need not give any introduction about him. He is very familiar in all the programs, in the TV programs, in the universities, not only in India, even he visited other countries also, as far as my knowledge is concerned. And I am always proud of him. Whenever I met him, I used to see the WhatsApp messages of him. Say, on one occasion, I was there in Newtown here in a function. I asked him to come here and talk with our student. I have this in the position of the teacher. In spite of all his busy schedule, he is a very busy man. In spite of all his busy schedule, he readily accepted, sir, I am ready to come at any time, you give me the command. So thank you very much, sir. Thank you very much for being with us here. It's a very pleasant day today. And we are gifted here to have Dr. Yasser Arafat here. And I will take 10 minutes at least. I am very proud of him actually. He is from a Urdu medium. You know, Urdu medium padko aaya sir. My school mein PG student biology. Biology padhata tha. The teacher of biology. Just he completed his 10th C section as my knowledge, 10th C Urdu medium, and then he selected biology, maths, physics, chemistry, and biology group. Now his interest in learning, all of a sudden from the Urdu medium, we changed it to the English medium, but the interest showed by him at that time to learn the subject, it never comparable. Nowadays, it is very difficult to find such a type of you. Actually, in real life, I used to see that both the corners. The student of 86, the student of 96, the student of 2006, now the student of 2018. Change. Still, say
lucky to our students. We have very good students like you, and because of the good students, we get the name throughout. I'm very much interested in learning subjects. Even though all of a sudden it shifted from the Urdu medium से आपको भी इनका इंटरेस्ट ऐसा अच्छा मान लिया बायोलॉजी में. 11th and 12th hard worker, very hard worker, a pious, kind-hearted, and very obedient and disciplined boy. I used to see, whenever I used to see the Yasir Arafat, I recall when he was a student. Very good student of me. I never forget some of the students. दो जने को मैं भूला नहीं. एक भी शैतान को, एक अच्छे बच्चा को. शैतान भी थे, बदल को अच्छे भी हैं, उसको बदली. I call the Urdu medium student because he is a product of the Urdu medium. And student Urdu medium पढ़े से तलबा या उर्दू मीडियम तलबा दुनिया भर फैल रही. साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, डिफरेंट फील्ड में. लेकिन इनका हमें ट्रेस करो तो इन सब हार्ड वर्कर्स. कौन मेहनत करेंगी उन्हें अचीव करेंगे. कौन मेहनत करेंगे उन्हें अचीव करेंगे. कौन मेहनत कराने थे कि उन्हें को फेल हो. they are the failures as far as their studies are concerned, not a straight line. They shine some other places but not as far as the studies are concerned. It is I think a lecture. He is a doctor and now I am a teacher of biology, but my knowledge in front of Dr. Yasir is nothing. Even though I am a teacher, now I was a student, I wanted to listen to him what I should learn from him now. I don't have a chance, and I also thank you for giving this chance here to learn something from you here. I welcome you, sir, on behalf of the student, the secretary and correspondent, the teachers, the BME society, and on my own behalf. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है. जनाब मोहतरम हादी साहब, अब्दुर्रहमान साहब, मेरे असातिज़ा इकराम और तलबा, मैं आप सबको इस्लामिक तरह से इस्तक़बाल करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मुझे आज बेहद खुशी है कि आज मैं इस्लामिया बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पीच कर रहा हूँ. इसके अलावा भी जो है कई इशारों के अंदर एज चीफ गेस्ट आया हूँ, मगर उस वक्त में आप लोग नहीं थे और ना ही हमारे असातिज़ा थे. कई मरतबा हुए हैं. मुझे जब बचपन में जब मैं 8th स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ा करता था तो यहाँ पर जो है कुछ मोटिवेशनल क्लासेस हुआ करते थे जो नमाज का है वहाँ पर. तो उस वक्त में जो है नीचे बैठे थे हम. जाहिर सी बात है आजकल माशाल्लाह कुछ चेयर भी मुहैया हो रहा है तो नीचे बैठ के जो है देखते थे. उस वक्त जो है मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना थी कि मैं जो है इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही बनूँगा. यानी इस्लामिया बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में आके बच्चों को पढ़ाऊँगा, यानी मेरे से उनको फ़ायदा होना चाहिए. मैं जो है कई असातिज़ा इकराम हैं जिनको मैं भूल नहीं सकता और मेरे जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई प्रेजेंटेशंस हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में भी हुए हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी हुए हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेक्चर्स हुए हैं. मगर इतने हज़ारों लोगों की तादाद जो है जहाँ पर थी वहाँ पर मेरे लेक्चर्स हुए हैं. मिनिस्टर्स के सामने, हेल्थ मिनिस्टर्स के सामने एडिशंस के प्रोग्राम्स बिहार में, यूपी के अंदर बहुत लेक्चर्स हुए हैं. मगर आज का जो दिन है मेरे लिए एक बहुत बेहद खुशी का दिन है और एक इमोशनल डे भी कह सकते हैं, क्योंकि जो है मेरे जो असातिज़ा इकराम हैं उसमें से हमारे
हादी साहब एक हैं, हमारे अब्दुल रहमान साहब भी हैं, वो भी आए थे, अभी शायद चले गए इधर देखिए। तो हमारे हादी साहब का जो है बहुत डरता था मैं इनसे, अभी भी डरता हूँ, मगर पहले बहुत ज़्यादा डरता था क्योंकि बहुत सुना था हादी साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो 10th में तो चलो अच्छा मार्क्स आ गया हमें, जब 11th पढ़ने की बारी आई तो जाहिर सी बात है इंग्लिश तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था। और इत्तेफाक से जो है मुझे किसी ने बोला कि हाजी साहब जो है ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, आप ज़रूर उनके पास जाओ। अब ट्यूशन जाने की तो हिम्मत नहीं थी, मगर कोई स्टूडेंट के पास गया मैं और उनके साथ ट्यूशन पे पढ़ना शुरू किया। और आप महसूस कर सकते हैं कि भाई एक लड़का है जो 10th तक उर्दू पढ़ के आया है और वहाँ पर कई दूसरे बच्चे होते थे, फातिमा स्कूल्स के बच्चे होते थे, दूसरे बच्चे भी होते थे जो कि इतनी अच्छी इंग्लिश होती थी और इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो साइंस था वो एकदम क्लियर था। और जब मैं वहाँ पर जाके बैठा तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब इनको कभी हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, इतना पीछे मुझे लग रहा था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा बैक हूँ। मगर कभी भी जो है मुझे जो है पढ़ाई में जाहिर सी बात है थोड़ा सा उस वक्त में मुश्किल था मुझे बहुत ज़्यादा। हाजी साहब भी पढ़ाते थे तो मुझे लगता था बहुत अच्छा लगता था जब उन्हें पढ़ाते थे, जब सवाल करते थे मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं आता मुझे। मगर कभी भी कम से कम जो है उनके साथ एक साल में पूरा ट्यूशन को भी गया था, कभी भी उन्होंने दूसरे बच्चों के सामने मुझे इंसल्ट नहीं किया कि यासर तुम्हें आता नहीं है, वो नहीं है। कैसा पूछते थे पता है? क्यों यासर तुम कंफ्यूज हो गए क्या पूछते थे। हमारे पास जो टेस्ट होता था BK वंस, कुछ भी लिखने के लिए नहीं आता, कुछ भी लिखने के लिए नहीं आता था इंग्लिश में। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं कहीं ना कहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मगर कभी भी जो है वो लोगों के सामने इंसल्ट नहीं किए मुझे। और उस वक्त में ये सवाल था कि भाई तू क्यों गलत किया या क्यों लिखा नहीं, कभी कंफ्यूज हो गए, शायद यही क्वेश्चन था उनका, कंफ्यूज हो गए। इसके अलावा जो है माशाल्लाह उसके बाद मैं दूसरी जगह गया, फिर बाद में मैंने 12th इसमें पढ़ा वेल्लोर में। उसके बाद मैंने 83% से भी ज़्यादा, फिर उसके बाद BUMS मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पूना से किया, BUMS मैंने गुलबर्गा से किया 5.5 साल। उसके बाद मैं पूना से MD किया 3 साल। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मैंने PGDMS किया। उसके बाद फिर मैं मदुरई गया, फिर मदुरई में कामराज यूनिवर्सिटी में एक्यूपंक्चर, अरोमाथेरेपी, ब्यूटिशियन, योगा, रेकी, मेडिटेशन, पंचकर्मा, अदर मेडिसिन पढ़ा। उसके बाद मैं डिप्लोमा का इसके अंदर जामिया निज़ाम हैदराबाद से डिप्लोमा इन अरबी किया। उसके बाद जो है नायब खाजी जो निकाह पढ़ाते हैं वो कोर्स करा। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी जो चीज़ें हैं अल्लाह के करम के बाद में हमारे असातिज़ा इकराम ही हैं जो हमें यहाँ तक लाते हैं। तो कभी भी जो है असातिज़ा इकराम को जब इज़्ज़त देंगे ना, अल्लाह सुब्हाना तआला आपको इज़्ज़त देगा। जितना असातिज़ा इकराम को आप जो है मोहब्बत करोगे ना, अल्लाह सुब्हाना तआला आपसे मोहब्बत करेगा। इन्हें वालिदैन से इताअत के साथ जो रहने का भी सबक हमें असातिज़ा इकराम सिखाते हैं। हम अपने वालिदैन के साथ बहुत कम वक्त गुजारते हैं घर के अंदर, ज़्यादातर हमारा जो अटैचमेंट होता है वो हमारे असातिज़ा इकराम के साथ होता है। एक्चुअली मेरा टॉपिक है नहीं ये, मैं आपको 2 मिनट में फिर मैं अपने असल टॉपिक पे जाऊँगा। एक उस्ताद थे, मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, तो वो हमारे जो है हॉस्पिटल, आप देखें होंगे इस्लामिया कॉलेज के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर मेरे हॉस्पिटल राइट साइड में है अब्बा की। तो वहाँ पर खड़े के जो है कुछ देख रहे थे बहुत दूर से। तो मैं एक कार में जा रहा था, तो इमीडिएटली मैं उतर के हज़रत के पास, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आप कई हज़रत यहाँ पर हैं। तो बोले अरे डॉक्टर यासर तुम्हें देखो नीचे उतरे बोल के पूछे। तो बोला खड़े हुए हज़रत परेशान थे, क्या है बोलो। उन्होंने मुझे बोले तो पहले ये बोलो तुम्हें कहीं नीचे उतरे। तो बोला आपको देखा, आप मुझे कभी नहीं पढ़ाए इस्लामिया स्कूल में, मगर मैं आपको देखा कि दूसरों को पढ़ाते हुए, मुझे मालूम है आप उस्ताद हैं इस्लामिया स्कूल के। तब उन्होंने बोले कि देखो बेटा, एक बच्चा है जो कि तकरीबन जो है 4 दिन से स्कूल को नहीं आया, तो मैं परेशान होकर जो है उनको बच्चे को ढूंढते हुए मैं आया हूँ अभी, तो ना उनके हालांकि स्कूल के बाद 5 बजे वो बच्चे को ढूंढते हुए जो है वो वहाँ तक पहुँचे, गुड्डे तक, और बोले कि बच्चे का घर नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो एक्चुअली जो है उस्ताद में एक बात बोला, जो हम आपके लिए जो इज्जत दे रहे ना, आप अपना प्रोफेशनल स्कूल से हट के वो बच्चों के पास आके वो बच्चों को जो आप सिखा रहे हो, मतलब बच्चों के घर जाके अगर बच्चा बीमार हो गया तो बच्चा क्यों स्कूल नहीं आया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी जो है बहुत बड़ा जो है असातिज़ा इकराम का है। मगर मैं देखता हूँ
कि हमारा जो बैच के बाद बहुत असातिज़ा और स्टूडेंट्स के दरमियान में काफ़ी फ़र्क डिफ्रेंशिएट आ गया। मतलब उस्तादों को इज़्ज़त बहुत कम करते हैं, डर के करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं नुकसान हमारे लिए। जितना हम अपने उस्ताद को इज़्ज़त देंगे हमें खुद इज़्ज़त मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जो है मौका दिया गया है कुछ बात आपके सामने कहने का। अभी हज़रत आ गए, आप देख सकते हैं। हमारे वालिद साहब जो बोलते थे मैं मैथ्स में भी वीक था, मैं तो सारे सब्जेक्ट में वीक था, एक तो बायोलॉजी का, मैं मैथ्स में वीक था। तो हमारे अब्बा को बोला कि मुझे हज़रत मुझे मैथ्स नहीं आता है। तो बोले कि तुम्हारे मैथ्स को कौन टीचर है? मैं बोला हमारे अब्दुल साहब पढ़ाते हैं। तो बोले कि इनको ना कभी मत छोड़ो। तो सुबह में फजर की नमाज के बाद उनके घर को चला जाता था अब्दुल सर के पास और दस्तक देता था। 10th के पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे यकीन मानो कि 9th तक मुझे सही मैथ्स नहीं आती। अब यकीन मानो कि 10th में मैंने हाईएस्ट जो है मार्क्स मैंने मैथ्स में ही लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो रीज़न है वो हमारे हजरत है। वो हजरत से ही मैंने 10th में मार्क्स लिया और वहीं पर मैं पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी और भी उस्ताद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी लोग मुझे जो है माशाल्लाह। तो यहाँ पर आके थोड़ा मुझे पुरानी बातें याद आ रही है, बट फिर भी चलिए इंशाल्लाह वक्त की कमी की वजह से मैं असल टॉपिक पे आपको बात कर रहा हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जंक फूड और अल्कोहल, ये कैसे जो है हमारे बॉडी के अंदर कैंसर क्रिएट करता है, शराब क्या है उसके बारे में जो है कुछ बताएं। हज़रत आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए। अच्छा है, मैं फास्ट फास्ट चल जाऊँगा। ये मेरे बेसिक क्वालिफिकेशन है। हज़रत आराम से वो स्लाइड देखो, आपको जो है थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊँगा क्योंकि अभी असर का नमाज का वक्त हो जा रहा है ना, तो बहुत फास्ट मैं बोलूँगा उर्दू आता है तो जो है फास्ट जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन करना क्योंकि ये बड़े बड़े प्रेजेंटेशन है, बट मैं आसान अंदाज से समझाने की कोशिश करूँगा। एक प्रवर्ब है, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यानी अगर हमारे पास माल है, दौलत है, अगर वो ख़त्म हो जाता है या कोई चोरी करके चला जाता है तो हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारी सेहत है, अगर वो तुम्हें रोज़ का रोज़ थोड़ा ख़त्म हो रही है तो समझो कि तुम्हारा कुछ नुकसान वाकई हो रहा है। इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारे अखलाक ख़राब हो गए, अखलाक ख़त्म हो गए, समझो कि तुम्हारे पास ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया तुम्हारा। तो सबसे ज़्यादा, चाहे वो वेल्थ से ज़्यादा, हेल्थ से ज़्यादा, कैरेक्टर की हमें ज़रूरत है। जब हम कोई भी शराब, नशा, कोई भी गंजा, कोई भी अफ्यूम, ऐसी नशे आवर अभिलिया का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले जाता है हमारा क्या, वेल्थ। कोई फ्री नहीं देता, बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं। यहाँ के लोग मर्डर कर देते हैं शराब लेने के लिए, लड़ाई करते हैं, बीवी के ताली भी बेच के लोग जो है वो शराब पीते हैं, कई लोग ऐसे हैं। और इसी तरीके से क्या होता है, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ उसकी चले जाती है। तो शराब पीने की वजह से, बीड़ी पीने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ भी जाती है। उसके बाद क्या होते हैं, जब इंसान शराब पी लेता है तो हमारे अंदर में वो खुद नहीं रहता, इसलिए उसके कैरेक्टर्स भी खराब हो जाते हैं। यानी हर आदमी जब स्कूल को आता है अच्छे कपड़े पहन के आता है, मगर इसी तरीके से हर आदमी जब ऑफिस को जाता है या शादी को जाता है अच्छे कपड़े पहन के जाता है। मगर क्या होता है, जब शराब हमारे अंदर चला जाता है या कोई भी ऐसे ड्रग्स हमारे अंदर चले जाते हैं, आप कई लोगों को देख सकते हैं जो गली में गिरे रहते हैं शराब पी के। कई लोगों की लुंगी नहीं रहती, कई लोगों की शर्ट नहीं रहते, भटके रहते, लड़ाई करते। ये सब क्यों, नशा अंदर जाने के बाद। एवरी टाइम यू ईट और ड्रिंक, हर वक्त आप कोई भी चीज़ अगर खा रहे हो या पी रहे हो तो यू आर either फीडिंग डिसीजेस और फाइटिंग। आप जो है या तो डिसीज को लड़ रहे हो या नहीं तो आप खुद जो है हेल्थ को जो है प्रमोट कर रहे हो। तो हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर दो किस्म के लोग हैं, समझो कि एक घर में कैंसर का पेशेंट है और एक घर के अंदर अल्कोहल के पेशेंट है, यानी शराब पीने वाला मौजूद है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, अरे कैंसर का पेशेंट है, उसको जाकर हमें इलाज के वास्ते पैसे देना, हम जो लोगों को हेल्प करना, उनको माली अमदाद करना, उनको हमें मदद करना, उनके साथ हॉस्पिटल को जाना, ये चीज़ समझ में आती है। मगर और एक घर में जब शराबी है तो हमारे पास क्या रहता है, अरे वो शराबी पे उठ जाओ, कहीं वो हेल्प करना बोले होते। मगर सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, कैंसर का पेशेंट अगर अफेक्टेड है तो सिर्फ उसको नुकसान होता, मगर जिस घर में शराबी है, जिस घर में अफीम का इस्तेमाल या गंजा का इस्तेमाल करता है, उस घर के अंदर क्या होता है, वो खुद भी नुकसान है, उसकी बीवी को भी नुकसान पहुंच रहा, उसके बच्चों को भी नुकसान पहुंच रहा। उसकी वजह से अगर उसने शराब पी के कार चलाया तो आपको भी नुकसान होगा।
आप अच्छा कार चला रहे हैं, शराब अगर वो पिया तो आपको आके एक्सीडेंट करके हमारी फैमिली में नुकसान होती है। तो सबसे ज़्यादा इलाज, सबसे अच्छा प्रॉब्लम क्या है, हम शराबी को बीमार समझते नहीं, हम समझते हैं कि आदत है। एक्चुअली क्या होता है, 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है फन, दूसरा होता है हैबिट, तीसरा होता है एडिक्शन। फन के माने क्या है कि भाई चलो शादी है, शादी के बाद जो बीड़ी पीना, या शादी होने के बाद में जो है शराब पीना, या जो है कभी थिएटर को गए वहाँ पर पीना, ये जो है मुसलमानों के अंदर कम है और गैर मुसलमानों के अंदर शादी ब्याह के अंदर, पार्टीज के अंदर। आज अगर आप जाओगे सिटीज, चाहे बैंगलोर, चेन्नई वगैरह, ऐसी जगह पार्टीज के नाम से क्या होता है, शराब पीते हैं, फाइनली शराब पीते हैं। तो पहले ये जो बीमारी शुरू होती है, कोई भी जो है मैं दुनिया का सबसे बड़ा शराबी होना बोल के नहीं पीता, वो शुरू करता है फन से, उसके बाद होते होते वो हैबिट में, आदत में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो एडिक्शन होता है, वो बीमार हो जाता है। तो उसके बाद जो है जब तक उसको इलाज नहीं करेंगे उसको हम वहाँ से बाहर नहीं ला सकते, समझ रहे हैं? तो शराब पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गुटखा पीना, ये एक बीमारी है, समझ में आ रहा? क्योंकि विदाउट जो है ट्रीटमेंट उसको आप बाहर ला ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर कई किस्म के एडिक्शन है। ओपियम बोल के आता है, हीरोइन, भंग, स्मोकिंग, गंजा, आजकल जो है वो कोरस सिरप बोल के भी आता है, खांसी के लिए पीते हैं लोग और एडिक्शन हो जाते हैं। आजकल जो है बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस होता है, न्यूटन के अंदर, मस्जिद गली के अंदर भी कई नौजवान ऐसे हैं जो फेविकॉल का इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो माँ बाप मुझे जो कंप्लेन करते हैं, मेरा बेटा जो है वो शराब पीता, ये कंप्लेन नहीं करते, बल्कि फेविकॉल लगा के सूंघना, पेट्रोल सूंघना, ये आइडेक्स खुद बाम सूंघते रहना, ये खुद भी एक एडिक्शन है। तो मैं खुद शराब का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मगर शराब के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो समझो कि कुछ दवाएं वगैरह भी हैं जो अगर आप दुबई एयरपोर्ट पे अगर पकड़ लिए, अगर आपको सिंगापुर एयरपोर्ट में अगर पकड़ लिए तो क्या होता, तो आपको डायरेक्टली जो है मर्डर कर देते। परसों भी एक शख्स को जो है, हालांकि कोई बोले कि मैं दवा दे दूँ जाके बोल के, वो सिंगापुर में पकड़े, इमीडिएटली उसको मर्डर कर, उसको जो है हैंग कर दिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं खुद दवाओं के अंदर जो एडिक्शन पैदा करता है, जो इंडिया के अंदर इजीली अवेलेबल है, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, बट वही दवाएं आपको दुबई के अंदर, सिंगापुर के अंदर पकड़े जाएंगे तो डायरेक्टली हैंग कर देंगे, समझ में आ रहा? तो सिर्फ शराब नहीं है, बल्कि कई ऐसी दवाएं हैं, ओपियम है, जिसके इंसान एडिक्शन हो सकता है। अब ये इंसान क्यों नहीं छोड़ता इसको? क्योंकि अगर जब वो छोड़ेगा तो उसको एक विड्रॉवल सिम्टम्स आता है। विड्रॉवल सिम्टम्स किसको बोलते हैं? समझो कि हमारे अभी एक इंसान जो है बीड़ी पीता है या सिगरेट पीता है या जो है शराब पीता है 8 बजे, अगर वो 8 बजे शराब नहीं पिया तो उसके दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो वो उसको मांगते हैं। अगर वो चीज़ उस वक्त में मुहैया नहीं होती है तो उसके अंदर एक बॉडी के अंदर कंप्लीट चेंजेस आते हैं, बॉडी के अंदर अबनॉर्मल चेंजेस आते हैं, वो अबनॉर्मल बिहेवियर आते हैं, उसको कहते हैं विड्रॉवल सिम्टम्स। समझ में आ रहा? यानी अगर वो चीज़ जो रेगुलर चीज़ को यूज़ कर रहा है, अगर उस वक्त में वो चीज़ नहीं मिलती तो उसकी बॉडी एक रिएक्शन पैदा करती है, उसको विड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो फिर जाके बार बार शराब पीता है या बार बार सिगरेट पीता है। मिसाल के तौर पर हर विड्रॉवल सिम्टम्स अलग अलग है। जैसे शराबी है तो शराबी को भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना, हैलोसिनेशन, कोई आके मार रहा, गुस्सा कर रहा, या उसको जो है आके बात करे जैसा महसूस होता। कई जो शराबी होंगे वो दीवार के सामने खड़े के बात करते, उसको लगता है कि दीवार उनको बात कर रहा है, उसको बोलते हैं हैलोसिनेशन। या एंजाइटी, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, जब तक शराब नहीं पीते नींद नहीं आना। जैसे स्मोकिंग जो लोग नहीं करते उनको जो है जब तक टॉयलेट मोशन नहीं होता तब तक वो सिगरेट नहीं पीते या नींद नहीं आती, जब तक सिगरेट नहीं पीते तो गुस्सा ठंडा नहीं होता। तो ये ऐसे गंजा पीने वालों को वो खुद मालूम होता है कि ऐसा काटने से ब्लीडिंग होगी, वो बोल के काटते। तो हर एक हर्ब का, हर एक मेडिसिन का, हर एक शराब का अलग अलग विड्रॉवल सिम्टम्स है, इन्हें उसके छोड़ने में अलग अलग रिएक्शंस बॉडी के अंदर आते हैं, इसी वजह से वो लोग उसको नहीं छोड़ते। जो कॉमन विड्रॉवल सिम्टम्स क्या है, जैसा हार्ट बीट बढ़ना और जो है बहुत ज़्यादा क्रिंकलिंग होना और जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, सूरह बकरा है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 219 के अंदर, आपसे शराब और जुए की निस्बत से सवाल करते हैं, फरमाते हैं इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए दुनिया की फायदा नहीं है, मगर इन दोनों का गुनाह उससे बढ़कर है। इन्हें लोग जब भी हम शराब के बारे में बोलते हैं, खुद तकरीबन 1992 की रिपोर्ट है, तकरीबन मोर देन 6000 करोड़ से तमिलनाडु गवर्नमेंट को फायदा होता है शराब पीने से। दुनिया में फायदे बहुत ज़्यादा है,
समझ में आ रहा? तो अल्लाह खुद ये फरमाता है कि आपसे शराब और जुए की निस्बत सवाल करते हैं, फरमाते इन दोनों में बड़ा गुनाह है, सबसे बहुत बड़ा गुनाह है, मगर कुछ फायदे भी दुनिया इसके अंदर है, मगर ये फायदे जो हैं नुकसान से कम हैं, नुकसान इसका बड़ा है। ये है सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2। इसी तरह से सूरह निसा है चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 43। फरमाते हैं कि मोमिनो जब तुम नशे के हालत में हो, जब तक जो मुंह से कह रहे हो समझने लगो, नमाज के पास ना जाओ। यानी जब हम जो ज़माने में सहाबा भी शराब पीते थे पहले तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अगर तुम्हारा नशा जब तक नहीं जाता तब तक तुम नमाज के करीब भी नहीं आना। ये है चैप्टर नंबर 4। इसी के बाद चैप्टर नंबर 5 में अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, शराब और जुआ और भूत परसे और खान से ये नापाक अमल शैतान है, इनसे बचते रहो ताकि तुम निजात पाओ। यानी ये फ्लुएंसी देखो, ये विड्रॉल सिम्टम्स के लिए भी चीज़ मैं आपको, ये जो पहले जो हुक्म आया सूरह बकरा में आया, सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 है, उसके बाद सूरह निसा चैप्टर नंबर 4, उसके बाद फिर ये चैप्टर नंबर 5। यानी अल्लाह भी डायरेक्टली कभी शराब के लिए सडनली बंद नहीं करा, बल्कि कई दिन लिया, कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिया और एक वक्त में एक आयत दी। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो शराब पीगा उसको अल्लाह सजा देने के लिए बोला, सडनली नहीं बोला, क्योंकि इसे बड़ा नुकसान होता है, विड्रॉल सिम्पटम्स खुद नुकसान होता है, वो खुद जाके सुसाइड कर लेता है। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे कि पर्सनल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। पर्सनल इफेक्ट्स क्या है कि जब इंसान शराब पीता है या कोई भी बीड़ी पीता है तो उसकी मेमोरी लॉस होती है और उसकी इम्यूनिटी पावर कम रहने की वजह से कुव्वत मनाती डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो मैं आगे बोलूँगा। तो इसी तरीके से ब्रेन डैमेज, लॉस ऑफ मेमोरी, बार बार जो है चेस्ट इन्फेक्शन, खांसते रहते, देखते हैं जो लोग बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, ये लोग खांसते रहते। इसी तरीके से जो है लिवर के अंदर हेपेटाइटिस आता है और जो है इम्यूनिटी पावर कम रहने की वजह से ये HIV, एड्स जैसे इन्फेक्शन आते हैं। अगर किसी को डायबिटिक है तो अनकंट्रोल डायबिटीज होती है, BP होते हैं, गैस्ट्राइटिस। दुनिया की कितने बीमारियां हैं जो कि शराब नोशी की वजह से और स्मोकिंग की वजह से होते हैं। इससे ये हमारा पर्सनल इफेक्ट है। सोशल इफेक्ट्स क्या क्या है? मिसाल के तौर पर जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज जिसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर किसी को रेप करना या किसी को मर्डर करना, किसी बच्चों को, अब देखोगे तकरीबन 3 दिन के पहले की न्यूज़ है कि एक 60 पर 6 साल बुढ़ा एक 3 साल की बच्ची को रेप किया और रेप करके मर्डर कर दिया, 3 साल की बच्ची को। जब उसको पकड़े, जब उसको अरेस्ट किए, तब जो है वो बोला कि मैं शराब के हालत में था, मुझे मालूम नहीं हुआ। उन्हें उसके माँ को भी रेप करा, उसको भी कत्ल कर दिया। पूना में जब था एक न्यूज़ सुना मैं कि माँ उसकी लेटर डालती है उसके बेटे को कि बेटा आर्मी में रहता है बॉर्डर में, आप जो देखना बोले। तो बेटा आता 6 महीने के बाद माँ को आके कपड़े वपड़े देता, सारी चीज़ें खाना पीना खा के शराब पी के सोता। क्या हुआ उसको नहीं मालूम। सुबह में उठ के देखा तो रात में वो अपनी माँ को रेप किया और उल्टा मर्डर भी कर दिया। ये है शराब। यानी पूरी जितने भी मर्डर होते हैं, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी गंदे काम होते हैं, अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं शराब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से जो है डोमेस्टिक वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान लड़ाई झगड़ा, बच्चों को पीटना, मारना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप कहीं बॉस हैं, आप चाहते हैं कि आपका अच्छा एम्प्लॉयमेंट हो, अगर वो रोज शराब पी के आता तो आप उसको रखते क्या? नहीं रखते। समझ में आ रहा? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? शराब पीने की वजह से या दूसरी चीज़ों से होने से लॉस ऑफ जॉब जो है हमारा चला जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली हम बहुत खराब हो जाते हैं, घर को कमा के नहीं दे सकते और जो है खाना खाने पर से हम रह जाते हैं। इसी वजह से सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर जो है कोई शराब पी के आके आपको बयान करेगा तो आप उसको सुनेंगे क्या? उसके बाद खुद सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है। अब एक सवाल पैदा हो सकता कि डॉक्टर साहब वो सब ठीक है, ये कहीं को हम ना आपको बोल रहे हैं, हमें तो शराब पिए ही ना कभी, हमें तो स्मोकिंग नहीं करे ना, ये सब मजे क्यों आके बोल रहे हैं? सवाल पैदा हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि एक सर्वे हम निकाले, सर्वे के अंदर पता चला कि तकरीबन 12 से 15 साल के अंदर 2.9% लोग इस शराब में और स्मोकिंग में मुब्तला होते हैं। इसी तरीके से 14 से 15 8%, 16 से 17 यानी 20 पर 6 साल के बाद जो लोग इसमें इफेक्ट होते हैं उनका परसेंटेज सिर्फ 0.03 यानी 0.3। कब वो 20 पर 6 साल के बाद ये शराब और तो ज़्यादातर जो इफेक्ट होते हैं ये कौन सी उम्र के दरमियान अगर बोले तो ये 16 to 17, कितना 16 से 17, ये एज के अंदर क्या होगा, लोग ज़्यादातर बीड़ी पीएंगे, शराब पीएंगे और मतलब ये एज जो आपकी चल रही है
ऐसे वक्त में अगर हम अवेयरनेस लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह 20-25 साल के बाद उससे बच जाएंगे। अगर ये उम्र के अंदर कंट्रोल नहीं रहेगा तो जरूर क्या होता कि बाद की उम्र के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता। इसी जैसा जो है कैंसर जो है, कितने टाइप्स ऑफ जो है शराब से और स्मोकिंग से कैंसर आता हो। देखो ये तकरीबन 7 किस्म के कैंसर हैं जो शराब पीने से और स्मोकिंग करने से आते हैं। मिसाल के तौर पर ये बोल कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर आता है। इसी तरीके से औरत को ब्रेस्ट कैंसर आता है। इसी तरह से एक वॉइस बॉक्स लैरिंजियल कैंसर बोलते हैं, वॉइस बॉक्स का स्मोकिंग करने से और शराब पीने से होता है। इसी जैसा लिवर कैंसर, माउथ कैंसर, इसोफेजियल कैंसर जो खाना खाते पाइप, उस पाइप के अंदर कैंसर आता है। और जो है ये अपर थ्रोट कैंसर, ये 7 किस्म के कैंसर हैं जो शराब पीने से और अल्कोहल या स्मोकिंग करने से आता। अगर समझो कि दोनों चीजें हैं, एक बंदा है जो स्मोकिंग भी कर रहा और साथ में क्या कर रहा है, शराब भी पी रहा है, उनको डेफिनेटली कैंसर आना ही आता है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, आप क्या करो कि एक मरतबा कैंसर हॉस्पिटल में विजिट करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि कितने लोग कैसी चीजों के अंदर अफेक्टेड है। ये आप कैंसर कैसा आता, ये थोड़ा सा 2 मिनट है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या रखा है, हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी पावर रखा है जिसको इनबिल्ट करके बोलते हैं। सब मोबाइल के अंदर आता ना इनबिल्ट बैटरी बोल के आती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करा, जब हमें पैदा करता है तो डिफेंसिव मैकेनिज्म, जब दुनिया के अंदर भेजागा वहाँ पर बैक्टीरिया भी है, वहाँ पर फंगस भी है, वहाँ पर वायरस भी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करा, एक इम्यूनिटी पावर को अंदर रख दिया। वो अंदर जो रखा उसको बोलते हैं कुव्वत मनात, इम्यूनिटी पावर। उसमें से एक चीज आता है जिसको एनके सेल्स कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। क्या बोलते हैं, एनके सेल्स। एनके सेल्स क्या करती, बॉडी के अंदर जब भी वायरस आता, बैक्टीरिया आता या फंगस आता, ये एनके सेल्स जाके क्या करता, उसको डिस्ट्रॉय कर देता। क्या करता, उसको डिस्ट्रॉय करता। जब हम शराब पीते या जो है हम सिगरेट पीते तो धीरे 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 क्या होते, ये एनके सेल्स खुद मर जाते। समझ में एक बात, यानी हमारे ये एनके सेल्स बाहर से लेके अंदर नहीं है, इनबिल्ट है, अल्लाह ने दिया है। जब भी बाहर से बैक्टीरिया या वायरस आता तो ये खुद एनके सेल्स के कैंसर्स आते, ये एनके सेल्स क्या करते, उसको घेर के उसको खत्म कर देते। अब क्या होता है, नेक्स्ट आप स्लाइड देखिए कंसंट्रेशन के साथ। शराब या कोई भी स्मोकिंग वगैरह करते तो हमारे बॉडी के अंदर एक पॉइजन जो है फॉर्म होता है जिसको एसिटाल्डिहाइड करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। ये एक पॉइजन जो शराब पीने के बाद या स्मोकिंग करने के बाद ब्लड के अंदर ट्रांसफर होता। ये एसिटाल्डिहाइड क्या करता, ये हमारे डीएनए समझ रहे, डीएनए आरएनए है ना, डीएनए है तो डीएनए में सेल डिवीजन होता। सेल डिवीजन मालूम ना, 2 से 4, 6 से 8 सेल डिवीजन बोलते हैं उसको। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोटेक्शन के लिए क्या करा है, डीएनए के जो सेल के अंदर एक लेयर रखा ताकि कोई भी कैंसर की चीजें अंदर दाखिल नहीं होना, और इसी तरह से वायरस या बैक्टीरिया डीएनए सेल के अंदर नहीं आना बोल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला रखा है। समझ में आना, जैसे ही शराब पीते हैं या जैसे ही स्मोकिंग करते हैं, वो डीएनए सेल का जो लेयर है जो प्रोटेक्शन के लिए है, ये एसिटाल्डिहाइड केमिकल इजीली इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और इजीली जो है क्या करता है, कैंसर के सेल्स वो डीएनए के अंदर चल जाता है, जिसकी वजह से इजीली कैंसर फैलता है। समझ में आया। इसी जैसा जो है आगे आप बढ़ोगे, 3 चीजें हैं हमारे बॉडी के अंदर। ईस्ट्रोजन बोल के, जब शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल काफी हद तक बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से कैंसर आता है। और जो है एक विटामिन है, समझो कि विटामिन, जिसको फ्लोटेट कहते हैं, ये इनबिल्ट फ्लोटेट है। फ्लोटेट एक विटामिन है जो आपको जितने भी अबनॉर्मल चीजें हैं जिसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसको मारता है, ये फ्लोटेट। ये फ्लोटेट की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इजीली इन्फेक्शन, बैक्टीरिया हो या फंगल हो या कोई भी कैंसर आता है। समझ में, कोई भी बीमारी इजीली आता है। ये फ्लोटेट को कौन डिस्ट्रॉय करते हैं, ये फ्लोटेट को नशेवर चीजें, एक तो नशेवर चीजें, दूसरा जंक फूड। समझ में आ रहा, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो फ्लोटेट को कम कर देती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बाहर से इन्फेक्शन नहीं इजी आ जाता है। वरना हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आना इम्पॉसिबल है। जो भी करते हैं बोलते हैं खुद हमारी जो है पैरों में हमने कुल्हाड़ी मारी। समझ में आ रहा। अच्छा, और आगे जो है कुछ बातें हैं। 5 टॉप किस्म के कैंसर हैं लेडीज में, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, स्टमक कैंसर,
सर्विक्स कैंसर और इंटेस्टाइनल कैंसर, और मर्दों के अंदर लंग कैंसर, स्टमक, लिवर और जो है इंटेस्टाइन और प्रोस्टेट कैंसर। ये 5 ऐसे कैंसर हैं जो आपको इजीली हर जगह पे मिल जाएंगे। ये आने का रीज़न क्या है? एक बात आप समझ में आती, अरे डॉक्टर साहब हमें तो जो है शराब नहीं पीते, क्या बोलते, हम तो जो है इसके बाद बीड़ी नहीं पीते, ठीक है, उससे आप बच जाएंगे। मगर कैंसर का जो दूसरा रीज़न है वो है जंक फूड। क्या है? जंक फूड किसको बोलते हैं मालूम? जंक फूड क्या है? पैक्ड फूड को बोलते हैं, जो कलरफुल आपको दुकान में दिखाई देती है। आप कितनी भी अच्छी बिरयानी पकाओ, कितने दिन अच्छी रहती? कितने दिन अच्छी रहती? 2 दिन अच्छी रहती। कितनी भी अच्छी बिरयानी पकाओ, तीसरे दिन खराब हो जाती है। समझ में आ रहा? कितना भी अच्छा आप शरबत बनाओ, जूस बनाओ, कितने दिन अच्छा रहता? 2 दिन अच्छा रहता। मगर मार्केट के अंदर जो फूड है जिसको जंक फूड बोलते हैं, ये जो जंक फूड है तकरीबन 6 महीने अच्छा रहता। आप उसको देखेंगे मैगी के पीछे 6 महीने अच्छा रहता, बोल समझ में आ रहा? 3 साल अच्छा रहता। कैसा पॉसिबल है? कैसा पॉसिबल बोले तो उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव्स उन्होंने डालते हैं। क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, खराब नहीं होना बोल को वो कुछ केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से वो 6 महीने अच्छा रहता। वो खुद प्रिजर्वेटिव्स की वजह से अंदर कैंसर आता। 2 चीजें प्रिजर्वेटिव्स के माने एक चीज खराब नहीं होना बोल के वो लोग डालते हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स में 2 चीजें बहुत ज्यादा रहती है। एक नमक, सॉल्ट, बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्ट डालते हैं, या बहुत जबरदस्त तरीके से शुगर डालते हैं, जो दोनों भी नुकसान करता है, जिसको जंक फूड या फास्ट फूड भी कह सकते हैं। आप समझो कि लेस है, आप भूल को एक भी चिप खा लिए तो लेस की, अब क्या करते हैं? पूरा पैकेट खत्म करके नहीं करते। ये एक एडिक्शन रहता है उसके अंदर। इसको हम सब, ये एक असल रीजन है कैंसर आने का, जिसको हमें पता नहीं। आगे मैं बोलूँ इसके अंदर क्या है? जबरदस्त तरीके से शुगर है, फैट है, कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट है, और न्यूट्रिशन वैल्यू कितना उसमें ताकत है? 0%, क्या भी नहीं। खाली ये जो टंग है उसको खाली टेस्ट देता, ना भूख मरती, ना हमें ताकत में कन्वर्ट होता। और आपको मालूम है कैंसर के पेशेंट को अगर उन्हें शुगर खाना छोड़ दिया, शक्कर खाना छोड़ दिया, कैंसर स्प्रेड होना भी बंद हो जाता। क्योंकि जब तक जो है कैंसर मीठा नहीं रहता वहां पर वो आगे नहीं बढ़ता। समझ में आया? इसी तरीके से मैगी है, मैगी के अंदर जबरदस्त तरीके से नमक रहता और प्रिजर्वेटिव डाल के रहते। 6 महीने कैसा अच्छा रहता? समझ में आ रहा? मगर टेस्ट जबरदस्त रहता, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं। चॉकलेट खाती एनर्जी आती, मगर उससे हमारा वाकई सेहत कितना बनता? 0, कुछ भी फायदा नहीं होता। और चॉकलेट का एक साल आप सुपर एक्सपायरी डेट देखो, एक चॉकलेट बना दिया तो 6 महीने, एक साल अच्छा रहता। इसी तरीके से फ्रूट जूसर्स जो ट्रॉपिकाना बोलते हैं, एक फ्रूट है जो आप खुद घर के अंदर जूस बना के पीते, एक स्लाइस है, ये जो है अपने पास पेप्सी है, कोका कोला है, इसके ऊपर कितने रिसर्च हुए हैं और प्रूव हुआ है, इसी वजह से कैंसर आता है। इसी तरीके से जो पिज्जा, बर्गर, हम क्या करते हैं? इडली वगैरह नहीं खाते, हालांकि दुनिया की सेफेस्ट फूड, दुनिया की आज पूरी दुनिया में आप जाएंगे तो अब लंदन के अंदर भी आप इडली की दुकान खुली है, मालूम? क्योंकि ये 100% स्टीम में बनता। दुनिया की सेफेस्ट फूड कौन सा है? इडली। मगर हमें खाने से शर्म करते हैं। शॉपिंग मॉल में गया तो बर्गर रहा तो बड़ा आदमी आसान के बात करते। इसके अंदर आप अगर देखोगे आप तो न्यूट्रिशनल वैल्यू 0, समझ में आना? ताकत कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे एक शक्कर जो हम खाते हैं, व्हाइट कलर का जो शक्कर है, इसका इंग्लिश में दूसरा नाम क्या होगा? तो व्हाइट पॉइजन, क्या बोलते हैं इसको? जितना आप खाओगे आप पॉइजन में मुब्तला हो रहे हो। जो सफेद शक्कर है ये बाद में बनाया गया तो ये नुकसान करता है। इसके अंदर जो है तकरीबन कितना, कम से कम पौना, ये जो डब्बा है ये पौना डब्बा शक्कर डाले। सिर्फ टेस्ट रहता, एनर्जी आती, मगर फायदा नहीं होता। इसी तरीके से लेस, कुरकुरे, ये सब प्लास्टिक से बनते हैं। आपको सब यूट्यूब में अवेलेबल है, अब इसके बारे में जाके देख लो इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त थोड़ा मैं शॉर्ट में खत्म करो। ये बहुत ज़रूरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि हमने दिन दिया ताकि तुम क्या करो? मेहनत करो, और रात दिया तुम आराम करो। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो दिन का जो कलर दिया वो 7 कलर है ना? क्या है? जिसको विब्रियोर कहते हैं, 7 कलर्स दिन के अंदर है ना, 7 कलर। रात में कितना कलर रहते? 1 कलर रहता। तो क्योंकि रात का जो कलर रहता उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर कई हार्मोन्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम सो जाते हैं रात के अंधेरे में
तो रात के अंधेरे में हमारे रेटिना के थ्रू हमारे दिमाग को अंदर एक पीनियल ग्लैंड बोलकर रहता, उसको मैसेज पहुंचता कि अब बंदा सो गया, लड़का सो गया, जो भी सो गया। अब कई हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन है जिसको मेलेटोनिन करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या होता, ये 8 घंटे जो है क्या होता, आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस होकर हमारे बॉडी के अंदर पूरा जो है फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता, एक तो क्या है, सर दर्द नहीं रहता, इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती, माइग्रेन नहीं आता, स्किन खूबसूरत रहती, कैंसर नहीं आता, और जो है डिप्रेशन नहीं रहता, और औरतों को रहा तो उनका जो साइकिल वगैरह वो ठीक आता। यानी एक हार्मोन खाली आप 8 घंटे सो गए तो बस, समझ में आ रहा? मिसाल के तौर पर एक इंसान है, पूरा दिन मेहनत करता, तो पूरा दिन मेहनत करने के लिए वो 7 कलर जरूरी है, मगर जब रात आती उसको आराम होना जरूरी है। मगर हम क्या करते हैं, अंधेरा होने के बाद हमारा छोटा सा मोबाइल हम लेके बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको सोने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना बड़ा लाइट जिसको सन बोलते हैं, उसको हम ऑफ ही नहीं कर सकते, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए क्या करते हैं, वो ऑफ कर देता है ना, ऑफ कर देता ताकि आप सो जाना। हम क्या करते हैं, मोबाइल का छोटा मोबाइल का बैटरी लेके हम बैठ जाते हैं और पूरी रात 2 बजे तक 12 बजे तक क्या करते हैं, उसमें वीडियो गेम खेलते, जिसकी वजह से क्या होता, ये हार्मोन फॉर्म नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर, जो खुद एंटी कैंसर सेल्स है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बॉडी के अंदर रखा है कि कैंसर इसको नहीं आना बोलके, इसको हम खुद प्रोड्यूस होने से रोक देते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैंसर फैलता। समझ में आ रहा? तो अगर कोई शख्स 8 घंटे रात में सो भी गया, उन्हें ऑटोमेटिकली कई बीमारियों से बच जाता है। यानी आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सो गए तो बस 8 घंटे रात में, समझ में आ रहा? इसी तरीके से जो है अब कलर्स जो है हमारे बॉडी के अंदर बहुत इफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, अगर आप देखेंगे फजर का एक कलर है, ज़ोहर का एक कलर, असर का एक कलर, मगरिब का एक कलर और इशा का एक कलर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला निकालता इंसान को घर से तो मस्जिद को जा, क्योंकि हर एक कलर का एक फायदा है। आप कभी गौर करें कि हम फजर में जाते हैं तो एक कलर होता है, ज़ोहर का एक कलर, अब फजर का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी है। सही आप बोलो कि इतने में लोगों में से कितने लोग हैं जो फजर की नमाज उठ के फजर की नमाज को जाते हाथ पर, फजर की नमाज को जाते, ठीक है, अब बाकी लोग नहीं जाते, लोग सर ठीक है चलो आखिरत में फायदा है नमाज पढ़ने का, मगर ऐसे लोगों को दुनिया में भी फायदा है, ये लोगों को सेहत भी बनती है, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है, जो लोग फजर के वक्त में सोते रहते हैं 8 बजे तक 9 बजे तक सूरज निकलने तक, ये लोगों को क्या होता है, आखिरत तो जाती मगर दुनिया में चले जाते, समझ रहे हैं? तो ये जो है बेहद जरूरी है, क्योंकि अब मिसाल के तौर पर जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अलग अलग कलर हमारे ऑर्गन से कनेक्ट हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सुबह में 5 बजे से लेकर 7 बजे जो है 2 घंटा हमारा इंटेस्टाइन में क्या रहता है, एनर्जी रहती है ज़्यादातर। अगर कोई शख्स उठा 5 बजे टॉयलेट में जाके आ गया, उसका इंटेस्टाइन वगैरह पूरा खाली हो जाता। 7 से 9 तक अगर वो नाश्ता कर लिया, पेट भर गया, उसको जो है स्टमक के प्रॉब्लम्स नहीं आते। 9 से अलग अलग इस तरीके से 2-2 घंटे का एक कलर है और 2-2 घंटे की एक एनर्जी है। अगर कोई उठा 3 से 5 तहज्जुद पढ़ा, नमाज पढ़ रहा, एक्सरसाइज कर रहा, तो लंच में आपको फायदा होगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उठते 9 बजे। अब 9 बजे उठते तो क्या रहता है, वहाँ पर स्टमक का टाइम जाके स्प्लीन का टाइम स्टार्ट होता है। तो कलर्स और टाइमिंग्स और ऑर्गन और एनर्जी, ये हम जो है हमारे साइकिल को हम खराब नहीं करना। अगर हमारे साइकिल को हम खराब कर देंगे तो हमारी बॉडी क्या करती, डिसीजेस प्रोड्यूस करती। समझ में आ रहा? आपको सेहतमंद होना है, सही वक्त पे उठिए, सही वक्त पे टॉयलेट को जाइए, सही वक्त पे नाश्ता करिए, सही वक्त पे नमाज पढ़े, सही वक्त पे आप सो जाए, खत्म। कई बीमारियों से इंशाअल्लाह ताला बच सकते हैं। अगर नहीं तो ये खुद बॉडी कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा मोबाइल का इस्तेमाल, रेडिएशन का इस्तेमाल, जिनके घरों के ऊपर बड़े बड़े रेडिएशन है, मोबाइल बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप के अंदर अभी क्या होता मालूम, आपको समझाता हूँ। दिन में सोना नहीं है ना, तो दिन का जो कलर है सूरज का वो ब्लू कलर है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती एक्चुअली। रात में क्या होता, वो ब्लू कलर नहीं रहता, जिसकी वजह से हम डीप स्लीप में जाते हैं। समझ में आ रहा? अब होता क्या कि जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते रात में या हम लैपटॉप इस्तेमाल करते, तो इससे जो ब्लू लाइट आती वो क्या करते हैं, हमारे रेटिना के थ्रू दिमाग को बोलते हैं कि अभी दिमिश है, वो रॉन्ग मैसेज देता है मोबाइल के जरिए। समझ में आ रहा? ये ब्लू लाइट जो होता है लैपटॉप के जरिए से या मोबाइल के जरिए से, हमने जो है हमारे रेटिना के थ्रू दिमाग
दिमाग को क्या करता है, रॉन्ग मैसेज पहुंचता कि दिन है बोल के। तो दिमाग क्या करता, रात में जो प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं करता। तो जो दिन और रात है ये हमारे मोबाइल की वजह से या लैपटॉप की वजह से हमारे दिमाग को रॉन्ग जो है क्या कर रहा, मैसेज पहुंचा रहा, जिसकी वजह से कैंसर पहुंच रहा। इसके अलावा जो है नहीं हेल्थी अगर हमें रहना है तो क्या क्या करना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बचपन में भी मजाक से अगर जो है कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह पी रहे हैं या लोगों को आप दे रहे पीने के लिए, दोस्त होते हैं ना ज़्यादातर अच्छे कामों में, उनके अम्मी बीमार है 100 रुपये दे भी कोई नहीं देता, मगर बीड़ी दे दो बीड़ी देता जो बीड़ी पियो। तो ऐसा अगर है उन्हें तुम्हारा दोस्त इसलिए तुम्हारा दुश्मन, समझ में ना, पहले दुश्मन उसे पूरा कट कर ले, क्योंकि अल्लाह से फरमाते हैं कि उसका दिन उसके दोस्त के दिन के मुकाबले है। यानी अगर समझो कि मैं मेरे दोस्त एकदम क्लोज कर दूँ, अगर मेरा दोस्त शराब पीएगा मैं दोस्त करूँ, समझ में आ रहा। तो अगर इंशाल्लाह ताला से कोई दूसरी बात, डॉक्टर साहब इतनी चीज़ें जो है लेस हमना पसंद, तुम्हें खानों को बोल दिए, हमें जो बिस्किट पसंद, हमें ये पसंद, ये सब क्या खाना डॉक्टर साहब कर बोले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने फ्रूट्स दिया खाने के लिए, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग टेस्ट में, मगर ये जो आर्टिफिशियल टेस्ट की वजह से ये फ्रूट्स वगैरह हम खाना बंद कर दिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कैंसर आ रहे हैं। इसी तरीके से अच्छी देखो, मैं आपको बताया कलर्स के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या मालूम है, हीमोग्लोबिन मुझे देखो भाई, ये इधर देखो, लास्ट बेंच इधर देखो, थोड़ा सा 2 मिनट मैं खत्म कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का एक कलर है। इंटेस्टाइन का कलर अलग, स्टमक का कलर अलग, हमारे सर के बाल का कलर अलग, नाखून का कलर, स्किन का कलर, सब अलग अलग है, अलग अलग है। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें रखी हुई है सबका अलग अलग कलर है। जो आसमान में देखो सब अलग अलग कलर है, अपने घर में सब अलग अलग कलर है। यानी कलर के बगैर कोई दुनिया है क्या? नहीं। यानी खुद आपको जो पेशाब आता है उसका कलर, खून है उसका कलर, समझ में आ रहा, मोशन हो गया उसका कलर। अगर पीले की जगह काला आ गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता, अगर पेशाब व्हाइट की जगह येलो हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता, हीमोग्लोबिन लाल से कम हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता। यानी हमारे बॉडी के अंदर कलर्स बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन है, क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर है। तो डॉक्टर क्या देख के बोलते हैं, देखो भाई तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम हो गया है, यानी हीमोग्लोबिन के माने तुम्हारे बॉडी के अंदर खून कम हो गया बोलते। अब वो हीमोग्लोबिन कैसा लाएंगे? अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को लाना है तो रेड कलर के फ्रूट इस्तेमाल करेंगे तो काफी है। समझ में आया? रेड कलर के फ्रूट्स, रेड कलर के वेजिटेबल्स, ये 2 चीजें खाएंगे रेड कलर, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली रेड कलर वगैरह रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से जो है बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि नमाज का भी वक्त हो गया है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जो है समंदर में कूद के या समंदर डुबा के लोगों को मारा है वो बहुत कम लोग हैं, मगर जो लोग जो है शराब में और जो स्मोकिंग में जो पी के जो लोग अपनी ज़िंदगी गंवाए हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये जो है कुछ बातें थी, ऐसे तो बहुत स्लाइड्स हैं, बहुत और भी बातें हैं, मगर एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, समझ में, बोर भी नहीं होना है आपको और आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होना है। तो सिर्फ कैंसर जो है शराब पीने से या स्मोकिंग करने से नहीं आता, मगर करा तो ज़रूर आता। इसके अलावा रात में अगर ठीक से 8 घंटे नहीं सोए तो भी हार्मोन की नहीं फॉर्म होने से कैंसर आता। इसके अलावा जो जंक फूड्स हैं, वो जंक फूड के इस्तेमाल करने से भी कैंसर आता। इसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करने से और ख़ासकर रात में ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है मेलेटोनिन नहीं फॉर्म होने की वजह से, उसकी वजह से भी कैंसर आता। तो कैंसर आने के बहुत से टाइप हैं। अगर कैंसर को मारना है या कैंसर से फाइट करना है तो 2 चीज़ें आपको करना पड़ेगा। एक, डेली 30 मिनट आपको मिनिमम एक्सरसाइज करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, वर्जिश करना है, आधा घंटा डेली करना है। नंबर 1, वो क्या भी करो, योगा करना है योगा करो, ये भी करते हैं कुछ भी, मगर एक्सरसाइज करना है 30 मिनट मिनिमम डेली। नंबर 2, फ्रूट्स खाना है, मिनिमम 2 फ्रूट एक दिन में अच्छा चबा को खाना है। फ्रूट्स समझ में आ रहा? फ्रूट्स जरूर खाना है, कोई भी फ्रूट, चाहे आपको पसंद ना हो फ्रूट, क्योंकि आज प्रूव किया है कि हमारी हेल्थ अगर इम्यूनिटी पर को बढ़ा देंगे तो खुद हमारे बॉडी के अंदर ऐसे एंटी कैंसर सेल्स पैदा होते हैं जो कैंसर को मारते हैं। क्योंकि आज कैंसर मारने के कैंसर का इलाज क्या है? 3 है। एक, जहां पर कैंसर लगा है उसको काट के निकाल देते हैं। दूसरा क्या है? कीमोथेरेपी बोलते, क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी, इंजेक्शन रहता, वो मारे तो क्या, वो डाले तो क्या होता है, कैंसर को मारने के चक्कर में हमारी इम्यूनिटी पर खराब हो जाती, इसकी वजह से कई नुकसान
और तीसरा रेडिएशन, तीनों खतरनाक अमल। आप खुद जो है फ्रूट्स अगर सही मकदार में खाएंगे और अच्छे मकदार में खाएंगे, वो खुद कैंसर को मारता, और खासकर ऑरेंज कलर के फ्रूट्स। तो ये जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रूट्स का आप अच्छा इस्तेमाल करो, और जो है रात में जो है 8 घंटे सो जाओ, समझ में ना। अगर नहीं सोएंगे तो वो भी कैंसर पैदा कर सकता। तो मैं जो है बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जनाब हादी साहब का, हेडमास्टर साहब का, और दूसरे भी असातिज़ा इकराम का, कि जिन्होंने जो है यहाँ पर मुझे मौका दिया कुछ बात आपके सामने कहने की। मगर इस तरीके से और भी प्रोग्राम्स इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कैंसर अवेयरनेस के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो। सेकेंडली ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मोटिवेशनल प्रोग्राम, पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्थी लाइफ, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम है। तो मैं चाह रहा था कि उनसे गुजारिश भी करूँगा कि मंथली वंस कोई भी 1 घंटा दे देंगे मुझे इंशाल्लाह, तो हर टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर तमाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I thank him from the bottom of my heart for having given such a wonderful lecture on the causes and the eradications, symptoms and the remedial measures to be taken to avoid cancer in our day-to-day life. We are highly honored to have Dr. Yasser here, and also to listen to his wonderful, inspiring and motivational talk over these things. So once again, I thank him on my own behalf and on behalf of the headmaster, teachers, management and my dear students. Thank you, sir. Thank you.